importance of ICR. He is working in a most respected institution of India in the field of agriculture. And let me introduce today's keynote speaker, that we have with us a very truly research oriented personality with us today, in the form of Dr. Chhatrapal Singh. Yes. He has conducted quality research in the field of agriculture economics and has produced very good research paper, got them published in finest research journals, conducted number of national and international conferences, and has also served has given his services as resource person in different conferences. He has also rich experience of interacting with the faculty members of different institutions. Normally, we do our graduation, post-graduation from one institution, but he did his MA Economics from University of Agra. Then he did his MPhil from CDLU Sirsa. After that, he did his PhD from Central University of Haryana, and he did postdoctoral fellow from ICSSR, Ministry of Human Resource Development, and in between he also did his B.Ed from MDU Rohtak. Not one, at least he did his one degree from one institution at one point of time. You are most welcome, sir. Today, we'll be speaking on a very pertinent topic, that is role of food processing in agricultural growth and food security. Nowadays, and we used to listen that the farmers by this date, and so on. These are only talks unless we stress on the allied activities of agriculture. Not production of certain crop is important, but how we can process the different crops. So food processing industry, which is the need of the hour, can fulfill our dream of doubling the income of the farmers. We will be speaking on this very aspect of food processing industries. So definitely your lecture will enrich not only the knowledge of the students who are participating, but also it will enrich the knowledge of our faculty member. You are most welcome, sir. You are most welcome. Over to Dr. Chhatrapal Singh. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? हेलो, आई एम एबल टू हियर सर. ओके, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, सतवीर सिंह सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, रमेश सिंगला सर, डॉक्टर रजनी शर्मा, एंड ऑल फैमिली ऑफ आर्या पब्लिक कॉलेज. And it is a very auspicious occasion for me to speak such a nice and civilized gathering of Arya College. And I also special thank to Rajni ma'am. He discussed with me, and after discuss with HOD and principal sir to share my view on your college student, your faculty. And now, sir, I'm going to start. As we know, sir, agriculture is a backbone of Indian economy.
since independence. So we saw and the food processing sector is a backbone for agricultural sector. Can you see my screen? हेलो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सर पीपीटी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, visible, sir. Visible. Thank you. So, as we know, the agriculture is a backbone of Indian economy, and nowadays the food processing sector is a backbone for agriculture sector, because this food processing is providing vital linkages between the two main sector of Indian economy, that is the food processing and agriculture sector. As we know, India has many success on agriculture and economic front, with the green revolution, yellow revolution, white revolution. But with the changes of time, we are facing new challenges in form of disguised unemployment and in agriculture sector, unemployment in rural sector, food inflation, food wastage, and so many more. India production base is strong. In some products, we are number one, number two, but at the same time, there is a huge wastage in agriculture product. In most of the African country and Asian country, in India also, we are focusing on increasing the production and productivity, but post harvest issue are neglected. Same thing happen in India. Agriculture is a backbone of Indian economy, but post harvest management is very poor. That's why, due to traditional supply chain, around 35% fruit and vegetable go to wastage in every year, and it is more than the total consumption of UK. And 50% of food grain also waste in India due to traditional supply chain. So now there is a number of challenges, as sir also said, the farmer doubling income, food security, and reducing the dependency from agriculture sector. Why we need the farmer doubling income? Because we say the last pay commission, after last so many TADA and other facility for the other sector, but there is no TADA in agriculture sector. So in this case, we also need to focus the income of the farmers. So here I try to elaborate the how food processing is helpful in agriculture development and food security of India. First of all, we discuss what is food processing. Food processing is a set of method and techniques used to transform raw material into the food, or to transform food into the other food for consumption by human being or animal. In other simple way, we can say we value addition in agriculture product, that is also food processing. सिंपल भाषा में समझे तो आपके पानीपत में पचरंगा अचार जो बड़ी फेमस है, वो आल्सो क्या है, एक फूड प्रोसेस प्रोडक्ट है. आपका जो भी चिप्स के पैकेट है, बिस्कुट है, ये सब चीज हमारी क्या है, फूड प्रोसेस प्रोडक्ट है. अब फूड प्रोसेसिंग के भी टू पार्ट है. तो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये वो होती है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से इनपुट्स लेती है, बट फूड आइटम नहीं होती. जैसे आप कॉटन कपड़ा जो इंडस्ट्री होती है एग्रीकल्चर से इनपुट लेती है, बट वो फूड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. बम्बू इंडस्ट्री, उससे काफी डेकोरेशन के और भी आइटम बनते हैं, बट वो प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं, पर वो फूड प्रोसेसिंग नहीं है. इसी प्रकार नॉन एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होती है. जैसे सी फूड है, आपका मीट चिकन है, इनसे भी जो फूड प्रोसेस बनते हैं वो फूड प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, बट क्या है, वो एग्रो बेस्ड नहीं है. अब देखते हैं स्टेटस इस इंडस्ट्री की. जब हम बात करते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट बजट में कहते तो कुछ इसके लिए स्पेशल ग्रांट दी थी, इस बजट में दी, हम आगे डिस्कस करते हैं. सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इंक्रोवी कहा जाता है. इसके लिए आप ये देख सकते हो इसमें इसकी इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है. तो ये जो इंडस्ट्री है इसका रैंक फर्स्ट है इन केस ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट. 5th रैंक है इंडिया में
तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है एज ए प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट। रैंक इन टोटल पर्सन एंगेज इन, फर्स्ट रैंक है इनमें, क्योंकि कुछ इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है जो थ्रू बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, सप्लाई चेन, थ्रू वैल्यू चेन, वो सब काउंट करने के बाद जो इंडस्ट्री है ये इसका रैंक 1 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री इसका रैंक फर्स्ट है। नंबर ऑफ फैक्ट्री इन ऑपरेशन यहाँ भी इसका रैंक फर्स्ट है। रैंक इन फिक्स कैपिटल 5th रैंक है। अच्छा देखिए, शेयर इन इंडिया टोटल फूड मार्केट में वहाँ 32% है, और कंट्रीब्यूशन इन इंडिया जीडीपी 12%, 8 अराउंड 13%. Rank in total output first. So these data also show the importance of this industry for Indian economy or for agriculture of India. These are the classification of this industry. The primary processing, food grain, milk product. जो आपका दूध से दही बनता है वो आपका क्या है, वो आपका फूड प्रोसेसिंग है। फूड ग्रेन आपका आटा, गेहूं से आटा, आटे से बिस्कुट बनता है, इट इज आल्सो है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल से मीट प्रोसेसिंग है। ये सेकेंडरी टर्सरी में आपका बिस्कुट, चॉकलेट, मेटल फूड्स आ जाते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ ओनली 25% है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 33% है, 42% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ भी हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अभी भी 25% है, इसको यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है। इट इज चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर आल्सो। अब है इंडियाज कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो हमारी इलेवन लैंड है उसका जो क्या है ये 2.42 है वर्ल्ड का शेयर में देखा जाए तो। बट यहाँ इसका देखिए रैंक देखोगे तो आप दूसरा है। इरिबल लैंड क्या, वहाँ नंबर 1 पोजीशन है। कोस्टल लाइन में हमारा ग्लोबल रैंक है 19। मेजर फूड क्रॉप्स में ग्लोबल रैंक पे हमारी 3rd पोजीशन है। ग्लोबल शेयर की बात करोगे तो 4% है। यहाँ फ्रूट की बात करोगे तो फ्रूट में इंडिया जो पोजीशन है नंबर 1 है, और टोटल शेयर ग्लोबल प्रोडक्शन में आप देखोगे तो वो 10% है। वेजिटेबल में इंडिया की पोजीशन है 2nd है, बट एज शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ ये 10% है। यहाँ आप देख रहे हो फ्रूट एंड वेजिटेबल में इंडिया को जो फूड प्रोसेसिंग की खासकर जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्रूट में हम नंबर 1 पोजीशन पे है, वेजिटेबल में नंबर 2 है, बट एट द सेम टाइम द वेस्टेज ऑफ 35%. So we need to minimize this waste through value addition, through processing, through cold storage, improve the traditional supply chain. राइस एंड पैडी में इंडिया का जो रैंक है वो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2nd है, और ग्लोबल लेवल 10%। वीट में हमारा ग्लोबल रैंक 2% और शेयर इन प्रोडक्शन क्या 12%। इसी प्रकार मिल्क में हम नंबर 1 पे हैं, ग्लोबल शेयर की बात आती है तो हमारे यहाँ 16% है। इसी प्रकार आप देखते हो शुगर कैन में हम 2% पे हैं, पल्सेस में नंबर 1 है। फिर हम कहते हैं पल्सेस का इंडिया फिर भी इंपोर्ट्स करता है, वो इसलिए कि यहाँ न्यूट्रिशन सोर्स मेजर सोर्स माना जाता है पल्सेस को, इसीलिए हम इंपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हम इंडिया की जो पोजीशन वर्ल्ड में नंबर 1 है, और टी में भी हम फर्स्ट पोजीशन है, एडिबल ऑयल में 3rd पोजीशन है, कैटल में यहाँ नंबर 1 पर। अब देखिए रिलीवेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट प्रेजेंट एरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हम बात करेंगे, जो कि एक मेजर चैलेंज है एट प्रेजेंट टाइम। फिर अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल में इसकी क्या रिलीवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम जो कि एक चैलेंज है, फार्मर डबलिंग इनकम को लेकर के। फिर फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या रिलीवेंस है। इसके अलावा एक मेजर जो एक सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, व्हेन वी डेवलप द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विदाउट वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो फूड प्रोसेसिंग इज आल्सो हेल्पफुल टू वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू फूड प्रोसेस इंडस्ट्री। यहाँ ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो लेटेस्ट थे उसमें, लेकिन वो कोविड की वजह से इनका डाटा कुछ अपडेट नहीं है, तो यहाँ 16-17 तक का जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डाटा है, तो ये जो वर्कर है लाख में 2.32 लाख है,
ये फीमेल ये वुमेन वर्कर है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो 19.33 टोटल वर्कर है। तो शेयर ऑफ वुमेन यहाँ 12% है। तो इट इज आल्सो इंडिकेट दैट इट इज हेल्पफुल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, जो कि आपकी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट इंडस्ट्री, ये डाटा एनएसओ से पब्लिश होता है। यहाँ 12.62% वुमेन वर्कर हैं। यहाँ टोटल वर्कर 51.11 है। यहाँ देखिए आपको अराउंड 25% शेयर ऑफ वुमेन वर्कर है। सो एज ए होल एम्प्लॉयमेंट एंड शेयर ऑफ वुमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट थ्रू फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर निकाला जाता है, उसमें ये निकाला गया था, उसमें फूड प्रोसेस मिनिस्ट्री डिफरेंट उसके। तो बाय द 1 लाख इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेस इंडस्ट्री से 14 लोगों को रोजगार मिलता है। बट अदर सेक्टर में क्या, इट जनरेट ओनली 3% विद द सेम इन्वेस्टमेंट। सो एफपीआई मतलब फूड प्रोसेसिंग कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट मल्टीपल 2.5 टाइम हायर देन अदर इंडस्ट्री। सो this industry provide the job more people by the same investment in comparison to other industry. So this industry is also provide the job, with this also provide the job of the agriculture product also, because when the backward linkage of this industry will increase. Backward linkage means from where any industries receive the inputs, और फॉरवर्ड लिंकेज जहां उस इंडस्ट्री का आउटपुट यूज होता है। तो बैकवर्ड लिंकेज किसी इंडस्ट्री का, जैसे बिस्कुट इंडस्ट्री का बैकवर्ड लिंकेज की बात करेंगे तो उसके लिए गेहूं है, और जहां गेहूं मार्केट में जा रहा है आपके, तो वो कस्टमर होलसेल रिटेल वो उसका फॉरवर्ड लिंकेजेज है। तो यहाँ उस सबको मिला करके जो ये रोजगार की बात आती है, तो ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए में 14 लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट थ्रू दिस सप्लाई चेन। अब देखिए एज ए प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए प्रोड्यूसर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में आपका एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपका पैकेजिंग, स्टोरेज भी है, उसके बाद स्टोरेज के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास, इसमें आप होलसेल के पास भी, इसमें डायरेक्ट रिटेल दिखा रहे, तो होलसेल के पास भी, और लास्ट कंज्यूमर का। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो इस इंडस्ट्री से कितना रोजगार क्रिएट होता है। फिर हम बात करते हैं हाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज हेल्पफुल इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू ऑफ ए फूड सिक्योरिटी मीन्स एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बाय ऑल पीपल एट ऑल टाइम फॉर ए हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ। फूड सिक्योरिटी मीन खाद्य पदार्थों की, अगर इसको हम हिंदी में अच्छे से समझे तो खाद्य पदार्थों की एक भौतिक एवं आर्थिक मात्राओं तक एक ऐसी पहुंच जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए सभी के लिए आवश्यक हो, और जिसे खोने का डर न हो, वो एक, उसको हम खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी कहते हैं। अब बात आती है फूड सिक्योरिटी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे हेल्पफुल है। तो हमने क्या देखा है, फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज की हेल्प में देखने के आप ये देख सकते हो कि फूड प्रोसेस, ये फूड सिक्योरिटी की कंपोनेंट क्या है, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी। एक्सेस मीन हेलो। हेलो सर। हेलो शत्रुपल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो छत्रपाल सर।
Just wait only for few seconds. I think सर देख रहे हैं वॉइस क्यों नहीं आ रही. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से सर की वॉइस नहीं आ रही. मेरा कांटेक्ट हो गया है, सर दिख रहे हैं अभी. ओके. Hello. Yes, sir. Now you're audible, sir. Okay, ma'am. Okay. यस सर. रजनी मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो. Yes, sir. Visible. Visible, sir. Visible. Okay. Perfectly visible. Okay. एक मिनट. सो यहाँ तक मैं लास्ट में. हेलो, यहाँ से इसके बाद आवाज नहीं आ रही थी कि मैम? रजनी मैम. नहीं वो नेक्स्ट पे थे हम. नेक्स्ट स्लाइड पे चले गए थे. अच्छा. नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी है ना उस पे आ चुके थे हम. फूड सिक्योरिटी वाली. ये सर यहाँ पर. अच्छा. हाँ. So food security means access and availability of food by all people at all time for a healthy and active life. So food security have two components, access and availability. So how food process industry is helpful to fulfill these two components, access and availability. Access depend on the purchasing power depend on the employment and income. So as previous slide we discussed employment through food process industry, employment through food supply chain. So then we can say it is helpful to provide the access for food security, and second component availability. Availability is depend on production and import. So we know what are the condition of the food production in different countries. So import is also costly and it is also affect our TOT and our BOP. So how food process industry is helpful to increase the availability. So by the minimize of wastage of food product, food process industry is helpful to increasing the extra availability of food product in India. So in case we can say it helpful to create the extra availability for food security. Then we can say the wastage of agriculture product at different level. 35% टोटल प्रोडक्शन फ्रूट वेजिटेबल वेस्टेज होता है. उस तो 35 में 50% एट फार्मर लेवल, 10% एट द APMC एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी, जो 3% एट लोकल ट्रेडर, 3% एट होलसेलर लेवल और 7% एट ब्रोकर लेवल एंड 25% एट रिटेल लेवल. इसके बावजूद डाटा अवेलेबल नहीं एट कंज्यूमर लेवल. घरों में आप कई बार सब्जी लेके आते हो, फ्रूट वेजिटेबल लेके जाते हो, बोलते इतनी लेके आए थे, इतनी निकल गई, कीड़े निकले, वो निकले. तो उसका जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ डाटा. दे आर saying at the 15% in some fruits and vegetables as consumer level. But for health point of view I want to say कि जब मार्केट में कुछ लेके आते हैं, कोई जो कई लोग की कोई फ्रूट वेजिटेबल जिसमें कीड़ा लगा रहता है, हम सोचते हैं कि नहीं वेस्टेज है, उसको लेके नहीं आते. बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए ज्यादा
बेटर है। एक तो आपको चीप मिल सकता है उस टेढ़ा मेढ़ा या कीड़ा, क्योंकि उस कीड़े तक आपकी क्या है, ये थोड़ा साइंटिफिक है, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट थोड़ा हटके कि वहां तक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा, दैट्स वाई उसमें कीड़ा वगैरह। तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो अच्छा। पंजाब में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज होता है नस्ल, तो वहां देख सकते नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट है वो ज्यादा। सो फ्रूट वेजिटेबल की मार्केटिंग करते समय अगर आपको इस तरह का फ्रूट वेजिटेबल दिखाई देता है तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ वेस्टेज। अब इस पिक्चर से आप फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ सकते हो। जो हो सकता है आप जो प्रीवियस स्लाइड्स के जो डेटा था उससे नहीं समझे हो, तो डाटा की वजह यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ इसके आप ये भी समझ सकते हो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है और इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है। आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड में आपका फूड इनसिक्योरिटी दिखाई दे, दूसरी साइड आपका फूड वेस्टेज दिखाई दे रही है। तो by minimize this wastage we can create extra availability which is helpful for the food security of India. During this process, minimizing the agriculture product value addition of these products and transportation from farmer to cold storage, farmer to food process industries, through this supply chain we create number of jobs. So we can say food process industry is helpful to increase the availability and access for Indian people. देख एक देखना ये था इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे इन इंडिया। तो ये मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये रिकमेंड करती है कि 120 ग्राम आपका फ्रूट और 300 ग्राम क्या वेजिटेबल पर डे रिक्वायर है फॉर हेल्थी एंड क्वालिटी लाइफ। अब देखिए ऑन द बेस ऑफ द प्रोडक्शन वी आर सरप्लस बाय द रिकमेंडेड लेवल ऑफ आईसीएमआर। हमें क्या है, अब देखो फ्रूट का क्या 173 ग्राम मिल रहा है आपको बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, और उसके बाद वेजिटेबल क्या है 3554, यहाँ कितना बताया गया था नीचे आपको 3, ये क्या 300 ग्राम है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो 55% एक्स्ट्रा आपके पास वेजिटेबल है, 53% एक्स्ट्रा सरप्लस आपके पास वेजिटेबल है। देख रहे हो ये जो कैलकुलेशन है ये जो लास्ट पॉपुलेशन जो थी उसके बेस पे किया गया था। तो इसी उस टाइम जो बेस ऑन द ये जो प्रोडक्शन है ये उसी टाइम का है जिस टाइम की पॉपुलेशन थी। तो उस टाइम पे आप देख रहे हो कि ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन वी आर सरप्लस 53% in fruit and 54% in vegetable on the base of product. But as we know, in India 35% post harvest losses. After this loss, what is condition? अब देखिए आफ्टर लॉस हम माइनस में जा रहे हैं, रिकमेंडेड लॉस -7.55, माइनस क्या है 69 पॉइंट अराउंड 70%। ये जो आपका ये 100 दिखाई दे रहा है आपको, और इसके बाद 130 अराउंड वेजिटेबल के लिए 112 या 113 कह सकते हो उसको वेजिटेबल। ये ऑन द बेस ऑफ क्या जो बचता है ऑन द बेस ऑफ आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम कहाँ हैं, आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस we are in minus position, but at the base of production we are in plus. So by this calculation we can understood the importance of post harvest management through food processing, through आपके cold storage, through improving the traditional supply chain. अब ये जो वेस्टेज है ये ज्यादा क्यों है, तो नेक्स्ट स्लाइड का आपको जवाब दे रही है कि इन इंडिया क्या जो हमारा जो प्रोसेसिंग लेवल है फूड प्रोडक्ट का वो इंडिया में 10% है, जबकि आप अदर कंट्री में देख रहे हो कि सभी में फ्रांस में 70%, बाकी में मोर देन 80% है। सो द cause of high wastage is low level of processing. When we increasing the level of processing of agriculture product, we will
minimize this wastage. Nowadays, government try to minimize this wastage, increasing the value addition, food processing. That's why in current budget, government also focus on this sector. Why food processing industry is important for food security? As we know, agriculture land is reducing day by day due to multiple use. हम समझ सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी खुल रही है, रोड निकल रहे हैं, आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फूड प्रोसेसिंग जोन है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है. सो ड्यू टू मल्टीपल यूज एग्रीकल्चर लैंड क्या रिड्यूस हो रही है, ये भी एक मेजर चैलेंज है आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए. दूसरा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी आपको पता है 2020 तक हम क्या है, पॉपुलेशन विल बी अराउंड 160 मिलियन. तो जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो भी ज्यादा है, इसकी वजह से भी आपको फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है. ग्लोबल वार्मिंग, स्वामीनाथन ने 2009 में कहा था कोपेनहेगन सम्मेलन, कि 1 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग increasing 7 billion agriculture products reduce. So global warming is also a threat challenge for increasing the production and productivity of agriculture. दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो गाय भैंस की जो शेयर है वर्ल्ड का 31% है. So they also need food from agriculture sector and land. जब हमारे यहाँ जो कैटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो उनको भी एग्रीकल्चर फूड चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए. तो ये भी एक चैलेंज है फूड सिक्योरिटी के लिए, और इस चैलेंज की वजह से फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फूड सिक्योरिटी के लिए पर्पज से. मल्टीपल यूज ऑफ फूड प्रोडक्ट. अब क्या है कि जो आपके सपोज करो आपने जो टारगेट है हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए आप अचीव भी कर लो ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन. सो अब भूखे पेट की लड़ाई सिर्फ भूखे पेट से नहीं है. अब भूखे पेट की लड़ाई क्या कार और पेट्रोल के डीजल टैंक से है. आपको पता है बायोडीजल बनाया जा रहा है, काफी प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, बायोडीजल, बायोफ्यूल. गन्ना से एथेनॉल हम पहले से निकालते आए हैं, लेकिन अब बायोडीजल के लिए जट्रोफा, ये जिसको रतन जोत कहते हैं, उसको यूज किया जा रहा है. और जट्रोफा की खेती के लिए क्या है, इज आल्सो रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि लैंड तो लिमिट है उसके पास. हम चैलेंज बढ़ गए. उसके बाद मेज से आप एथेनॉल निकाल रहे हो, पेडिस्ट्रा जो धान की पराली को जला करके उसको आप एथेनॉल निकाल रहे हो. उसके अलावा इंडिया का एक ये था कि 2030 तक विजन 2030 तक इंडिया जो एथेनॉल का यूज और बढ़ाना चाहती है, फिर कुछ 20% डिपेंडेंसी कम बढ़ाना चाहती है, रिड्यूस द कार्बन एंड डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल विच आल्सो इफेक्ट आवर टीओटी एंड बीओपी. सो ये जो मल्टीपल यूज की वजह से भी एक चैलेंज है फूड सिक्योरिटी के सामने. एक चैलेंज DFI, फार्मर डबलिंग फार्मर इनकम ड्यू टू कोविड. अब गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा था, इट वाज गुड इनिशिएटिव टू डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022 in India, but what happened after COVID? In agriculture there is a major problem of disguised unemployment, छुपी हुई बेरोजगार, जहाँ की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वहाँ जीरो होता है, वो प्रॉब्लम. उसके बाद कोविड की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो शहरों में आदमी गए हुए थे वो एग्रीकल्चर में आए, तो एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटा प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हो गया. तो उन अब जब हम डबलिंग इनकम करनी है तो डबलिंग इनकम का इनकम डबल कब हो गया, तो आप एग्रीकल्चर में जहां आपको 10 टन हो रहा था वहां 20 टन पैदा कीजिए, या जो रेट पहले 2000 था 4000. बोथ आर नॉट पॉसिबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारा जो पूर तबका होता है उसको हम पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसे भी नहीं कि प्राइस ज्यादा कर दे. तो इन केस में फार्मर डबलिंग इनकम के लिए एक ऑप्शन बचता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं उनको एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में उनको लाया जाए. जहाँ 2 लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनमें से एक को आप एग्रीकल्चर अलाइड में ले आए, कहीं बाहर ले आए, तो जो एक आदमी बच गया उसकी ऑटोमेटिक डबल इनकम हो गई. तो ये ऑप्शन बचता है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड अदर मेजर प्रॉब्लम इंडिया में क्या, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है,
डाउट सॉल्ट एंड सैचुरेट पॉइंट। सो आपका हरियाणा, पंजाब और जो ये वेस्टर्न यूपी है, जो कि एग्रीकल्चर की अच्छी लैंड मानी जाती है, वहाँ एग्रीकल्चर सैचुरेट पॉइंट आ चुका है, वहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अब नेगेटिव हो चुकी है। सो इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, food process industries play a vital role for food security in India. अब नेक्स्ट आता है हाउ फूड प्रोसेस इंडस्ट्री हेल्पफुल इन वुमेन एम्पावरमेंट। When we discuss the inclusive democracy, but inclusive democracy is not possible without women empowerment. As you know, women empowerment has become the key element in the development of any society and nation. We know the education is the milestone for women empowerment in any state or any country, any society. Or in India, around 31 women are literate. For such type of women, women empowerment is more important and more difficult. So we need something more and special for such type of women empowerment, because these literate and uneducated women can't go employment in any government sector, private, any multinational companies. So what? But women empowerment is more important and more difficult for such type of female. But agriculture and food processing sector provide opportunity for them. Agro-based and food processing are a unique solution of these major problems, because the industry also provide job to unskilled, semi-skilled, uneducated women. According to the Ministry of Labor and Employment Bureau, Shimla, Chandigarh, Government of India, only 5.5 women workers are skilled and 31.3 are semi-skilled, and rest of the worker unskilled in selected एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये आप कह सकते हो क्या 63%, 63% जो अनस्किल्ड वुमेन भी फूड एंड एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। सो वी कैन से दिस इंडस्ट्री इज हेल्पफुल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir, your voice is not audible again. हेलो हेलो। यस सर, नाउ ऑडिबल सर। ओके। फिर से गया। इसे ऑडिबल है आपको? ऑडिबल है। ओके ओके। हमें आपकी आवाज भी आ रही है और ओके वीडियो भी नजर आ रहा है। ओके। So the data show that food process industry is also helpful for women empowerment in India, especially for the 36% of women. I also include some case study for
हेलो। Yes, sir, audible, sir. ओके ओके ओके। भारती समूह आचार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप which was established in 2002 in the Guda village block Kanina district Mahendragarh in Haryana, and this type of self help group which are making the food products like papad, achar and chips in many villages. And Jagrati Mahila Samiti, it has near about 800 member of the Samiti. She got an international fame through exhibition in Pakistan. पाक ये 2013 की एक केस स्टडी है जहाँ के पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ने इनको इनवाइट भी किया था कि टू ट्रेंड द पाकिस्तानी वुमेन्स एंड हेलो आवाज आ रही है हेलो Yes, sir, आ रही है. Yes, sir. अच्छा Yes, हाँ जी सर, आ रही है आवाज. लिज्जत पापड़ वन of the another major example of women empowerment in India. It started in 1959. It was started by semi-literate Gujarat housewife from Mumbai and initially capital of the company was 80% borrowing. 80 रुपए उधार लेके ये बिजनेस स्टार्ट किया गया था. आज के इसका टर्न 950 करोड़ रुपए, including 49 crore of export. Employment around 72,000 people. Only driver and security guard are the male in this Lijat Papad company. Otherwise, all are the female. And so many other Papad company, they are providing the raw material as a atta, prepared atta, and provide the at home. And many female prepare and they supply at the evening. They are earned from home. The food industry demand drive. तो फूड इंडस्ट्री की डिमांड ड्राइव क्या है? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल एंड एस्पिरेशंस. आवाज आ रही है ना मैम? ये हेलो हेलो सर, आ रही है. नहीं, ये टू की आवाज आती है. Yes, sir, audible है. ओके. दूसरा ये बीच में हाँ है. इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिली एंड वुमेन वर्किंग. सो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, वर्किंग वुमेन बढ़ रही है, तो उस वजह से जो प्रोसेस फूड की डिमांड बढ़ी है. अब हस्बैंड वाइफ बोथ आर इन वर्किंग, तो दे आर डिमांड रेडी टू ईट फूड. पहले होता था कि ठीक है अभी लोग सुबह सुबह एक बार घर से खा के निकलते, बाद में ऑफिस में कुछ खा लेंगे, आपका पिज्जा बर्गर चाउमीन पाप जो व्हाट दिस आर ऑल प्रोसेस फूड. ऑर्गेनाइज रिटेल एंड प्राइवेट लेवल पेंट्रेशन ये सब बढ़ रहे हैं. आपका राइजिंग इन डिस्पोजल इनकम, जो फिर दूसरा क्या है कि लोगों की जो डिस्पोजल इनकम है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ रही है. इंक्रीजिंग स्पेंड ऑन हेल्थी फूड. अच्छा, लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक भी हो. आपने ये कोविड के टाइम भी देखा होगा कि जो शुगर कैन से जो एक प्रोडक्ट बनता है गुड़, उसकी डिमांड जो पहले सर्दियों में होती थी, लेकिन वो कहने लगी इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसकी डिमांड आपने गर्मी में बढ़ी, क्योंकि वो एज ए हेल्थी फूड लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा अवेयर हो गए. इसकी वजह से हेल्दी फूड की डिमांड करते हैं. न्यूट्रिशन फूड लोगों को चाहिए, उसकी वजह से भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की डिमांड जो है बढ़ रही है. अब ये ऊपर हम तो डिस्कस कर रहे थे कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट को भी इसकी इम्पोर्टेंस लग रही है. उसकी इसी जो बजट में इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया गया है. तो एलोकेशन ऑफ बजट आल्सो फोकस ऑन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड ऑन फूड स्टोरेज, वेयर हाउस, नेशनल लाइफ स्टॉक स्कीम, fishery, rural development and digitalization. Government have called many programs into किसान उन्नति योजना. तो अब गवर्नमेंट क्या करिए कि हर बजट में आपका जो स्टोरेज के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वेयर हाउस के लिए पैसा खर्च कर रही है. विद इन फूड प्रोसेस इंडस्ट्री LTI, that is total linked infrastructure unit investment has increased from 10 to 120 crore, which focus on mega food parks and increase micro food processing unit, which directly strengthen the small medium enterprises, self-help group, other linked with rural economic activity groups. Food storage warehouse unit attract increasing funding from 943 to 4,000 crores, increasing by 15-fold. अब देखिए बजट आल्सो फोकस ऑन डिफ्यूजन 2.3
7 lakh crore on MSP on rice wheat to benefit 1.6 crore farmer. DBT and also agriculture current limit increase to 18 lakh crore. The budget also focused on advancing the many expert direction in agriculture, allied activity, and government also increasing one another thing. Many research by the ICR, Indian Council of Agriculture, is about the quality seeds. Also, within farming digitization platform for agriculture, counter reach farm land and crops by drone through single app system, attract allocation by 239 crore. This also includes the agriculture infrastructure program for post-harvest management by this year with increased funding 500 crore. This agriculture will jump from 100% by this year. This is also include agriculture infrastructure program for post-harvest management. This is same copy. Post-harvest management by this year with increasing funding at 500 crore. The allocation of budget also focus on food processing unit, food storage, warehouse, national livestock scheme, fishery, rural development, digitalization government by the government, and many more other. So conclusion is that the growing crops, when we increase the farmer doubling income, increasing. Hello, आवाज आ रही मैम? Hello. Yes sir, आ रही है आवाज. When we improving the agriculture sector, the farmers doubling farmer income. So I think the growing crops are fertile without providing processing value addition, especially when our farmers are struggling to find a way increase their income from farm, especially these area. Somebody where the agriculture land got saturate point. FPI, food process industry provide remunerative price to the farmer, generate employment opportunity, and provide convenience to consumer. This line the answer to our major problem of agriculture development, diversification, disguised employment in the agriculture sector, and unemployment in rural area, and food insecurity, and it also help in the rural development of India. Now we discuss the agriculture problem. The problem of agriculture development need to be tackled from two different angles. First, to increase the production and productivity of agriculture sector. Second, delivery system, and to increase the farmer earnings through efficient, effective value addition and food processing agriculture commodity, and enhancing the backward forward linkages. As I earlier discussed, backward linkage कि जहाँ से food process industry इनपुट्स लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, और फॉरवर्ड लिंकेज कि जहां पे फूड प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट बिकता है, यूज होता है. इफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमेटिकली द लिंक ऑफ दिस इंडस्ट्री, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज ऑटोमेटिकली increase. If backward linkage increase, they demand more and more inputs from agriculture sector. If they demand more and more inputs from agriculture sector, it will be helpful to minimize the wastage of agriculture production, provide the price to the farmer, and also the food processing employment in food processing sector. Forward linkage also provide job in agriculture allied activity, as I saw in one of the slides, supply chain. So if we develop food process industry through backward forward linkages, our agriculture will be developed. Thank you from my side. Rajni ma'am. Hello. Yes, thank you sir. Thank you so much sir. Yes, Vikas sir, I'm not able to switch on my video. Yes. Let me allow, ma'am. Okay sir. Thank you so much sir. Lecture बहुत अच्छा था. In between, I want to I'm inviting questions from the side of audience. Okay. आप सबने ये लेक्चर सुना और ऑडियंस में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, और सर का प्राइमरी स्टडी पे बहुत ही काम है, किसी को भी उसके बारे में कुछ पूछना है, तो योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम.
Yes, anybody, if you want to ask any question from our guest, Dr. Shatrupal ji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Side by side, please switch on your camera for a group photograph. विकास सर, अभी एक क्वेश्चन खड़ा है हमारे यहाँ पर, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा चले, उसके बाद हम ये फोटोग्राफ ले लेते हैं। यस सर, ये क्वेश्चन एक यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट ने आपसे पूछा है जी। क्या क्वेश्चन है मैम? सर, आपको वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। यस सर, वो उनका क्वेश्चन है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप कहाँ पर ज्यादा है? ये स्मॉल स्केल लेवल पर हो सकती है या ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, ये क्वेश्चन कर रहे हैं पारुल। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लोकेशन, एक हमने इकोनॉमिक्स में लोकेशन थ्योरी पढ़ते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल और मार्केट दोनों चीज जहाँ अवेलेबल हो, वहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, खोल सकते हो, कि वो मैटर नहीं करता कि ज्यादा नहीं ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है। अब हरियाणा में आप देखते हो कि 45% टोटल फ्रूट एंड वेजिटेबल आपका सोनीपत में पैदा होता है, क्योंकि आजादपुर मंडी की मार्केटिंग है। फिर उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सोनीपत में है, फूड प्रोसेसिंग जोन भी सोनीपत में है। तो इंडस्ट्री के लिए पहले तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट कहाँ मिलती है। अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल से कोई स्मॉल स्केल फूड प्रोसेस इंडस्ट्री खोलनी है, आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं खोल सकते, आप सोनीपत के आसपास खोल सकते हो, जहां से आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है। दिल्ली जैसी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है और आपके पास मार्केट के ऑप्शन क्या क्या है। लेकिन मेन चीज आपको रॉ मटेरियल अगर आपको मिलता है तो मार्केटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। आपने देखा होगा पानीपत का पचरंगा अचार है, पूरे हरियाणा में चलता है, और भी कई जगह के, और लीजिए पापड़ गला बहुत सारे, और पापड़ बहुत सारी वैरायटी है। तो मार्केटिंग और क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो आप कहीं से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या और लार्ज स्केल पे भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री खोल सकते हो। और रही बात ऑर्गेनाइज में, जैसे हरियाणा में ये बहादुरगढ़ के पास पार्ले जी ऑर्गेनाइज फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल, वहाँ काफी लोगों को वहाँ उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्ट कैपिटल कितनी है, उसके हिसाब से आपकी जो सोर्स क्या है, जो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस लेवल पे आप ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज स्मॉल स्केल लार्ज स्केल। जैसे बिस्कुट बेकरी वाली जो इंडस्ट्री है, इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर इसका होता है हमारे यहाँ, नमकीन बिस्कुट बेकरी बनाते हैं, तो कुछ लोग इससे स्टार्ट करते हैं। आजकल कोविड की वजह से कुछ देखा था कि हमने जो ये बर्गर और पिज्जा जो शहरों में बनाते हैं, तो कोविड की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो आजकल वही काम उन्होंने गांव में शुरू कर दिया, और मेरे गांव में होम डिलीवरी स्टार्ट किया हुआ उन्होंने। तो ये आपकी स्किल और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कहीं भी फूड प्रोसेसिंग फूड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। जी मैडम। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई अगर सर से क्वेश्चन पूछना चाहता है? Excuse me, sir. यस मैम। Excuse me, sir. I जी have a बोलिए। question. बोलो मैम। Varsha ma'am, you can switch your camera. Yes, sir. Sir, I have a question. जी सर, जैसे कि आपने अपने एक्सटेंशन लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की एक लिमिट है, जी और जी लैंड है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जी जी तो हमें मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी है या जो एग्रीकल्चरल मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं उनमें बढ़ाना पड़ेगा, उनको हमें मार्केट से लिंक करना पड़ेगा। आपने ये चीज हमें बड़े अच्छे से बताई। जी तो मैडम। इसमें मैं भी यही मानती हूँ सर कि एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग है, ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। यस मैम। और एक ये चीज, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जो फार्म बिल आए थे
एग्रीकल्चरल फार्म बिल, Yes, क्या ma'am. आपको लगता है कि अगर वो इम्प्लीमेंट होते तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो और ज्यादा ग्रो करती? यस मैम। और एनी और कुछ और इसमें आप इलिब्रेट करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहेंगे मैम? नहीं सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैम ऐसा मुझे जो लगता है कि उनके थ्रू कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे काफी फोकस किया गया था, जैसे कि डायरेक्शन थी उसकी फार्म्स बिल की। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा होता सच में कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो ज्यादा ग्रो करती है अगर इस तरीके के फार्म बिल इम्प्लीमेंट होते इंडियन एग्रीकल्चर में तो? यस मैम, अच्छा क्वेश्चन आपका। मैं ऐसा देखिए, जो ये जो फूड बिल को वापस लिया गया, इसके आपके लोग कहते हैं इसमें पॉलिटिकल रीजन था, बट इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रीजन है। पॉलिटिकल रीजन पे अगर बात मैं क्यों कह रहा हूँ और मैं इकोनॉमिकल रीजन क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पॉलिटिकल रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है और वहां पे न तो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वहां डिमांड की जाती है। फिर वही कांग्रेस और लेफ्ट पंजाब हरियाणा में आके क्यों एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी का विरोध करे, कि जबकि केरला में क्यों नहीं करते? ये तो शो करता है कि पॉलिटिकल एंगल था। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक पर्पज। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचता हूँ। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इसका विरोध किया गया था वो बताता हूँ। पंजाब में टोटल रेवेन्यू का मैडम 9% आपका एमएसपी से आता था, टोटल रेवेन्यू का 9%। और ये था, ये 3,500 करोड़ इसकी वैल्यू थी। 9% शेयर टोटल रेवेन्यू, 9% किसी स्टेट का रेवेन्यू उसके हाथ से निकल रहा है, उसकी इट मींस उसकी जो डिपेंडेंसी वो सेंटर पे बढ़ रही है। पंजाब का टोटल जी रेवेन्यू, जी गवर्नमेंट ने क्या, आप एमएसपी पे मंडी के बाहर भी बेच सकते हो, किसी भी आड़त की गवर्नमेंट मंडी के ऊपर भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये किया था। तो इससे क्या होगा, जो पंजाब गवर्नमेंट का 9% रेवेन्यू कम हो रहा था, इसलिए पंजाब में जो अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, अकाली कांग्रेस जो भी सब एक हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हरियाणा ने कम विरोध क्यों किया? हरियाणा का जो यहाँ इनको 9% का लॉस होता था, हरियाणा को 6% का लॉस हो रहा है। दूसरा, हरियाणा का 60% जो रेवेन्यू है वो दिल्ली एनसीआर से कवर हो जाता है। अब बात आती है फूड प्रोसेस इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता? ये था डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि जो फूड ग्रेन प्रोडक्ट है आपका, जो वीट है, वहां पर क्या है कि अगर अब देखिए गेहूं की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने गेहूं को बोना छोड़ दिया है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ से मैंने देखा है कि लोग सरसों की खेती कर रहे हैं, कि बोलते नहीं एक बोरी सरसों बेचकर 3 बोरी गेहूं ले सकते हैं। तो क्यों? हम गेहूं का जब एमएसपी कम है, तो एमएसपी कम है, कॉस्ट ज्यादा है। अगर उनका गेहूं का एमएसपी थोड़ा ठीक होता तो लोग गेहूं की तरफ भी जाते, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता। तो आपने देखा लास्ट टाइम सरसों की इतनी ज्यादा रेट तक चली गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एमएसपी होता जी तो का रेट अच्छा होता। दूसरा, पंजाब में विरोध इसलिए भी था कि जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये तय करती है। तो ये इसलिए करती है कि भाई जो लोग एक फसल से दूसरी फसल की तरफ डायरेक्ट वो डाइवर्सिफाई न हो। पर अब क्या हो रहा है, अब एमएसपी नहीं मिल रहा तो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। अगर एमएसपी मिलता तो उनको हो सकता था गेहूं का ज्यादा प्रोडक्शन करते, जो आपकी बिस्कुट बेकरी इंडस्ट्री थी उसको उसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा मिल सकता था। दूसरा, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री पे एक इफेक्ट नहीं पड़ेगा एमएसपी से, वो है जो इंडिया का जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है, पेरिशेबल कमोडिटी है, उसके लिए कोई एमएसपी है ही नहीं। फ्रूट वेजिटेबल की ज्यादा दिक्कत है वहां, वो 35% एज आई डिस्कस वेस्ट होता है। वो फूड प्रोसेसिंग इसके फ्रूट एंड वेजिटेबल की पहले एमएसपी नहीं है, इसलिए यहाँ तो वैल्यू एडिशन हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में अच्छी फैसिलिटी दी जा सकती है, जो इस बजट में की गई है। तो इस बजट में क्या किया गया, आप एग्रीकल्चर एमएसपी वो सिस्टम हट गया, तो गवर्नमेंट ने फोकस कहाँ शिफ्ट किया? आप बजट का ट्रेड देखोगे तो इन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ड्रेन टेक्नोलॉजी यहाँ इन्वेस्ट किया है, ताकि हम जी सर जी वैसे तो फार्मर इनकम नहीं बढ़ा सकते, तो इसी बढ़ाते थे। दूसरा, एमएसपी का एक ड्रॉबैक ये भी रहता है मैडम, एमएसपी हरियाणा पंजाब ऑल इंडिया में एक है, मानते हो? लेकिन गेहूं नहीं की सर। कॉस्ट में मैं ऑल इंडिया की बात नहीं करता, साउथ हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा में ही गेहूं की कॉस्ट अलग अलग है। हमारे यहाँ ट्यूबवेलों से पानी लगाते हैं, आपके करनाल पानीपत साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड वाटर फ्री का है। तो जो एमएसपी है वो ऑल इंडिया में सेम होता है, ऑल हरियाणा में सेम है, जबकि कॉस्ट डिफरेंस है। तो एमएसपी में अपने आप में भी कमियां हैं। एमएसपी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट होना चाहिए, पूरे देश में पूरी स्टेट में एक जैसा वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो फ्रूट वेजिटेबल
डिपेंडेंसी वाले जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है उनके लिए तो आप एमएसपी नहीं, उनके लिए तो आप कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ एमएसपी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। हाँ, आपके जो फूड ग्रेन प्रोडक्ट हैं उसमें अगर एमएसपी बढ़ेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा तो लोग फसल का एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाने से रॉ मटेरियल मिलता है क्योंकि वेस्टेज का डर नहीं रहता, तो इस वजह से डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलता। मैम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी थैंक यू क्वेश्चन? सर। और किसी का है कोई क्वेश्चन? सर इज इनवाइटिंग क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन? सर मैं ऐसा, जैसे आपने जो भी आपका एक्सटेंशन लेक्चर रहा आज का, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा। तो मैंने समझा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट नॉट बिकॉज के ये आफ्टर एग्रीकल्चर हमें कुछ कंट्रीब्यूट अच्छा दे रही है, बट उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। आपने बताया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। हम बहुत सारा आपने एक टेबल दिखाए कि उसमें फर्स्ट है हम हर चीज में। तो हमारे बजट में बताया भी गया, गवर्नमेंट ने बजट में डाल दिया, इतना एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, लेकिन क्या फार्मर्स को ये अवेयरनेस दी जा रही है दैट लाइक देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो वो उसी में से निकलकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आए और वहां पर आकर वो अवेयरनेस जो है उसको किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में सर आप कुछ बता सकते हैं? यस मैम, अवेयरनेस तो मेन इशू है हमारे आईसीआर रिसर्च में, वहाँ भी डिस्कस होता है। हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, फार्मर को हिंदी भी नहीं पढ़ पाता, तो कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से फार्मर तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती जो गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो फार्मर तक पता नहीं। एक अपना जल संरक्षण बचाओ योजना ऐसे है, अगर आपने लास्ट ईयर आपने धान बोए थे, अगर आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर दिया अगर, तो उसको गवर्नमेंट 6,000 रुपए पर एकड़ देती है, लेकिन बहुत से किसान को पता ही नहीं है वो 6,000 का बेनिफिट उसको मिल सकता था। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट को थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, अवेयरनेस। लेकिन पिछले कुछ टाइम से थोड़ी सी मीडिया का जो रोल बढ़ा है ना इंडिया में, तो उसकी वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% फार्मर अवेयर है, बट अवेयरनेस बढ़ी है। आप देखोगे टीवी पे गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम होती है, बजट होता है, तो 2-3 दिन तक डिबेट चलती है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चले, किसानों को कुछ दिया नहीं तो वो फिर दूसरे वाले सरकार वाले नहीं ये दिया है। तो इसमें अवेयरनेस का लेवल पहले से बढ़ा है। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट ने क्या कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं जो कि आईसीआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में आते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र टाइम पे वो मेले प्रदर्शन सेमिनार भी करते रहते हैं, फार्मर्स को बुलाते भी रहते हैं और गांव में भी जाते रहते हैं। तो वो अवेयरनेस पहले के मुकाबले काफी बड़ी है, लेकिन काफी उसको बढ़ने की जरूरत है। यो हरियाणा में, अब उड़ीसा, बिहार, जो जहाँ टीवी मोबाइल ये सब चीजें वहां नहीं है, जो मीडिया से, सोशल मीडिया से कहो, नॉर्मल मीडिया से कहो, तो लोगों की कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहां हमें गवर्नमेंट को कुछ और नुक्कड़ नाटक के थ्रू, ऐसी जगह पे गवर्नमेंट वहां जाए, वहां नुक्कड़ नाटक के थ्रू वहां पे लोगों को अवेयरनेस दे जहाँ पे टीवी के द्वारा की फैसिलिटी वहां पे नहीं है। तो ये आप सही कह रहे हो कि जो इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को तभी मिल सकता है जब उसको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनकी जानकारी मिले। गवर्नमेंट, अब पहले जब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं होता था, हमारे खेतों में आसपास जब पीक सीजन में फ्रूट वेजिटेबल, जो वेजिटेबल फ्रूट तो होता है, वेजिटेबल ही होती थी, गोभी गाजर को क्या करते थे, खेत में से निकाल के पशुओं को डालते थे। मैं कहता था कि भाई अंकल जी इनको मंडी में क्यों नहीं, बोलता उतने का तो तेल फूक जाएगा ट्रैक्टर का, वहां कुछ मिलेगा नहीं। बट अब फार्मर्स को पता है कि इसका अचार डल सकता है, इसका वैल्यू एडिशन हो सकता है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है कि आजादपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज है, वहां आपका 2-3 क्विंटल तक आपसे रेंट लिया जाएगा और आपको वहां प्रोडक्शन रख लिया जाता है। जब आपका प्राइस हाई होता है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। गुजरात का इसमें और अच्छा सिस्टम है कि वहां पे कोल्ड स्टोरेज में अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, सोलर प्लेट लगाई हुई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट मेजर होती है कोल्ड स्टोरेज में, और कोल्ड स्टोरेज फूड मैनेजमेंट वेस्टेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज के लिए काफी सब्सिडी दी है, और वहां पे फार्मर को एज कोल्ड स्टोरेज लोन का काम करते हैं गुजरात में, कि वो ठीक आप पैसे लीजिए, जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो हम आपका अपना पैसा उसमें से काट के आपको दे देंगे। तो इस तरह की स्कीम भी गवर्नमेंट को फैलानी चाहिए, उनकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए।
तब जाकर के किसानों का भला हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, एक फार्मर चाहता है उसका बेटा बार बार बन सकता है लेकिन फार्मर नहीं बने, इन फार्मर हाई रिस्क एंड लो रिटर्न in comparison to other sectors. So that's why government focus on food processing sector, post harvest management, agriculture and allied activity, animal husbandry, यहाँ गवर्नमेंट अपना फोकस बढ़ा रही है जी। Thank you, sir. Thank you so much. I want to thank our guest, Dr. Chhatrapal Singh जी। और इसी के साथ मैं ये भी, जो आज का पूरा लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीजें समझी, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात जो सर ने अभी कही, आई रियली इम्प्रेस्ड, कि हमारे रिसर्च पेपर्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो उसका फायदा या उस रिसर्च स्टडीज से निकला गया जो कंक्लूजन है वो हमारे फार्मर्स तक, उन लेमैन तक नहीं पहुंच पाता है। इसी के साथ सर आपने बताया देयर इज लो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन इंडिया, और सबसे बड़ी बात जो आपने करी, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी रिसेंट टीवी चैनल पर शार्क टैंक एक चल रहा था, मैंने उसमें देखा कि वुमेन्स अगर आइडियाज लेके आ रही थी तो वो रियली अचार, घर से बनाए हुए डिशेज, एंड दैट इज द रियल एग्जांपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इसी के साथ आपने एक बहुत अच्छा आपका लेक्चर, मैं ये कहूंगी इसमें बहुत सारी बातों को आपने इनकॉर्पोरेट किया, लाइक आपने इन्वायरमेंटल जो थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग का, यू रिलेट दैट विद द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और वो कैसे उसको हम रिमूव करके कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। योर लेक्चर इज रियली फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड डबलिंग फार्मर इनकम का आइडिया, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, और इसी तरीके से आपका जो लेक्चर में एक जो बात रही, दैट इज कि कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपना रोल प्ले कर सकती है फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में। इट इज ऑल्सो वेरी रिमार्केबल सर। और आपका जो फोकस रहा आपकी स्टडी में इलिटरेट वुमेन पर, वो भी बहुत अच्छा एक आइडिया देता है कि लिटरेट होकर तो हर कोई एम्पावर हो जाता है, लेकिन इलिटरेट वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लेसन वी गेट फ्रॉम योर लेक्चर। Thank you so much, sir. Your lecture is like treat to our mind, and I want to thank you on behalf of the whole RIPG college family. I want to thank you on behalf of our Kautilya Economic Association, Department of Economics. And sir, thank you from the side of all my students who are here. They are listening you and they have joined this meet. Thank you so much, sir. Thank you, sir. But sir, अभी एक फोटो लेंगे हमारे एफडीपी सेल के जो हैं, तो उसके लिए अभी आगे का ओवर टू यू पंकज सर। Yes, please, all participants, please switch on your cameras and wait for 10 to 15 seconds, please. Yes, please keep switching on. Dhanvika sir? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, students. Now, students, you can leave this meet. Thank you. Thanks to all. Thank you very much, sir. Okay, ma'am. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you, sir.